यहाँ पर आने का और हमें समय देने का। जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं और जिस पे फोकस है वो है टेहरी में एक्रोबैटिक फेस्टिवल। इंडिया का पहला है एंड प्राइमरीली हमारे यहाँ इंडिया में एक जगह है बीड बिलिंग, आपने नाम सुना होगा, जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए बहुत फेमस है। हम भी उत्तराखंड में बीड बिलिंग पे ही बैंक करते थे अपने जितने पायलट्स हैं। हमारा बड़ा अच्छा बिजनेस उत्तराखंड का चलता है भीमताल नैनीताल क्लस्टर के अंदर। उसके अलावा हमने चाहा कि इसको हम प्रमोट करें, पायलट्स की ट्रेनिंग करें। उस उद्देश्य से हमने यहाँ पर सबसे पहला हमने ये शुरू किया कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग्स करवाएं। तो SIV कोर्स एक पानी के ऊपर होता है जो जिसके लिए बिलासपुर जाना पड़ता था और बहुत कम जगह पे होता है, बिकॉज ये पानी पे ही होता है कोर्स। तो हमने ये डेस्टिनेशन डेवलप करी, ताना जी ने हमारे साथ जुड़े। ये हमारे मेंटोर हैं, ये एक एक्रोबैटिक पायलट है, SIV भी कराते हैं, इज़ अ मास्टर एंड ही हैज़ हिज ओन सेटअप इन कामशेट इन महाराष्ट्र। सो वी डिड इनवाइट हिम एंड वी did our first SIV course homegrown in Uttarakhand for the pilots। SIV कोर्स एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर टैंडम पैराग्लाइडिंग। आप समझते हैं एक होता है सोलो मतलब मैं खुद उड़ रहा हूँ, जो कि यहाँ होने वाला है, जो एक्सपर्ट्स उड़ते हैं। बट जो टूरिस्ट है वो टैंडम में उड़ता है किसी के साथ। तो वहाँ सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न आता है, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा कंसर्न आता है और हम चाहते हैं कि वी नीड अ जीरो एक्सीडेंट काइंड ऑफ सेटअप द वे वी आर ट्राइंग टू डू फॉर आवर other activities also. Tourists should be 100% safe. That is our motto. We may do less business, but we want to do quality business. So that is why we focused on training. And this year, let me be I'm very happy to tell you that we allocated nearly 1.5 crores for the land-based activities through Nehru Institute of Mountaineering for training of our children and basically the guides, and 1 crore for paragliding to train the boys right from the beginning at zero cost, free of cost. We will create our own homegrown best quality pilots and guides. Then there is another course which will start for the river guides as well. Earlier we used to bank on other agencies to train them. We used to give them certification and permissions, but now we have decided that we will go in for training and capacity building. Now this whole concept of Tehri as a destination started with the initiative of the Ministry of Tourism. It is called Swadesh Darshan. Now the latest one has come 2.0. Earlier it was the previous version, under which we did get a hotel there and 22 floating huts. That was also first time. अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ floating huts हैं पानी के अंदर और आप पानी के अंदर रह सकते हैं, बोट से जाना पड़ता है because it's a fresh water lake. Now second thing which we started was the boating in Tehri Lake. कहते हैं विध्वंस में ही सृजन है। तो जो आप एरिया देख रहे हैं, मैं इसी क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ। हम थोड़ा विस्थापित है यहाँ के, हमारे गांव थे नीचे जो पानी में डूब गए। नेशनल लेवल पे डैम बनना था, डैम बना है, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ पर। THDC टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको मैनेज करता है। अब इसके बाद जो है यहाँ के लोकल व्यक्तियों का रोजगार, दो हमारे इश्यूज हैं उत्तराखंड में मेन। एक है पलायन, माइग्रेशन, the other one is unemployment, and we want to focus on social development goals. There are 17 of them, you are all aware. Okay, by doing destination development, by developing newer destination, by creating and expanding the niche segment of tourism, which is adventure, which is homestays, which is, I would say, ecotourism, right? So I today, as of now, I am serving Indian Army also. 3 years I have been here. First adventure wing was created by us in India, in the state of Uttarakhand. Ministry of Tourism wants such segments or such wings in all states, because India as of now in adventure is at a very nascent stage. The activities are happening, lot of things are happening which are happening in foreign, but policies, compliance level issues, that is what we are focusing on. So to that extent, we started with the Swadesh Darshan project at Tehri. Boating has started, we got boat parasailing. The footfall is almost doubled or tripled. I take it post COVID, and इसी के जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपका हरिद्वार एंड ऋषिकेश, जहाँ फुटफॉल हमारा सबसे ज़्यादा है। ऋषिकेश आप सब गए होंगे, सबसे बड़ा राफ्टिंग का बिजनेस वर्ल्ड का वही चलता है। करीब 5 लाख यात्री
सिर्फ राफ्टिंग करके वहाँ जाते हैं हर साल। सो उसके ऊपर भी हम काफ़ी सेफ्टी पे चीज़ें बना रहे हैं। इंडिया का फर्स्ट रेस्क्यू सेंटर हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। आवर मोटो अगेन आई रीइटरेट, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इज कमिटेड टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट, एंड बिकॉज द टूरिस्ट्स आर कमिंग, द Delhi NCR region has got this area which is now about 5 hours away, and shortly it will become about 3 hours, 2.5, 3 hours away. So this is the next best area where you can quickly go and enjoy the nature. People go. Turkey, as you know, is a very good adventure destination. We have Cappadocia, a lot of balloons are flown. So a lot of people from abroad, they are interested in paragliding, and they are expert pilots. They want a site where they can come. We are looking at the inbound traffic, especially to these regions. Not very happy coming back to Delhi. I was here 3 years in Sena Bhavan. You can imagine cooped up in a building like that, and only monkeys to be seen around. And of course, the smog is hitting us really. इवेंट लाने के लिए सॉरी, पहले से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं माइक पे कभी बात नहीं करता हूँ, और आई एम नॉट दैट रियली कंफर्टेबल ऑन माइक। मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन या बात करने की। फेस्टिवल ये है बेसिकली, जो टिहरी है, जो लेक है, जो पैराग्लाइडिंग की जो साइट है, ये पैराग्लाइडिंग, एक्रोबैटिक, और जो सर ने अभी कहा SIV का अर्थ है सिमुलेशन इन फ्लाइट। मतलब हम जो पैराग्लाइडर के साथ जो भी दुर्घटना घटने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, अगर पैराग्लाइडर बंद हो गया हवा में, तो उसे कैसे खोलना है, कैसे वापस सेफली फ्लाई करना है, तो ये ट्रेनिंग दी जाती है पानी के ऊपर। और उससे फिर पायलट जो है वो सीखता है, वो अपना सिमुलेशन करता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो एक सेफ पायलट बनता है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले तो भारतीयों को यूरोप में जाना पड़ता है। यूरोप में बहुत महंगा है, इतना दूर जाना है, और वर्ल्ड वाइज भी ज़्यादा साइट है नहीं। मेरे जानकारी में 2-3 साइट ऐसी है जो बहुत फेमस है। उसमें से नंबर 1 पे मैं देखता हूँ तुर्की में ओलुदेनिस करके है, वह समंदर के ऊपर ये प्रैक्टिस की जाती है। दूसरी 2 जगह हैं, एक ऑस्ट्रिया में है जिनका हाइट 1300 मीटर है, और दूसरी एक जगह है वो इटली में है। इटली में वो भी 1200-1300 फीट की है। और अब मैंने टिहरी देखा, टिहरी की हाइट 1400 मीटर है। तो हमारे पास इतनी सुंदर साइट होके हमें किसी को पता ही नहीं है, पैराग्लाइडिंग वालों को, लोगों को पता ही नहीं है। और जो साइट की जो पोटेंशियल है वो वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट हो सकती है। तो ये माध्यम में, हम फेस्टिवल के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे पास उत्तराखंड में टिहरी में ऐसी पैराग्लाइडिंग साइट है जहाँ दुनिया से लोग आ सकते हैं और यहाँ पर अपने कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ, मैं जब तुर्की जाता हूँ तो तुर्की में मेरे जैसे काफ़ी सैकड़ों इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, और वो अपने हर अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स को लेके वहाँ आके वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि टिहरी में ये पोटेंशियल है। और उल्टा यहाँ की पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि हम पानी स्वीट वाटर के ऊपर है। समंदर में नमक के पानी में ग्लाइडर्स खराब होते हैं, ये एक बेनिफिट है। दूसरा, यूरोप में खर्चा काफ़ी है। जब मैं तुर्की जाता हूँ तो 3-4 लाख रुपए खर्च होता है जस्ट 15-20 दिन के लिए। हमारे उत्तराखंड में आने के लिए, एक तो इंडिया वैसे यूरोप के कंपैरिजन में सस्ता है,
उत्तराखंड में आने के लिए जो हमारा एक्सेस है वो बहुत सिंपल है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सुबह की फ्लाइट ख़त्म करके रात का डिनर मैं फैमिली के साथ करता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यूरोप वालों को भी आना है तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से फिर उत्तराखंड 1 घंटे की फ़्लाइट है और वहाँ से टिहरी जाने के लिए 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, हेलीकॉप्टर राइड भी है। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हमें दिखाना है, ये इवेंट के माध्यम से हमने 30-40 यूरोपियन पायलट्स बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं। उनमें 90% सब मास्टर इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ये ट्रेनिंग देते हैं, जो कोर्सेज करवाते हैं, जो वर्ल्ड के टॉप इंस्ट्रक्टर्स और टॉप एक्रो पायलट्स हैं, चैम्पियंस हैं। तो हम ये पोटेंशियल हमें दिखाना है, यहाँ की जो क्षमता है वो दिखानी है और हमारे इंडिया के लोगों को भी दिखाना है कि पैराग्लाइडिंग में हमारे यहाँ पर ये कोर्स हम कर सकते हैं। ये कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर पैराग्लाइडिंग में आपको एज अ कमर्शियल पायलट या आगे चलना है तो ये कोर्स मैंडेटरी है, करना ही करना है। इसके बाद ही आप एक कमर्शियल पायलट से किसी की जिम्मेदारी आप आपके साथ ले सकते हैं एज अ पायलट। अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो आप किसी की जान का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, आप नहीं है केपेबल। तो ये इम्पॉर्टेंट है और पैराग्लाइडिंग हमारे देश में नहीं तो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, बहुत फेमस है। अभी तो ओलंपिक में भी पैराग्लाइडिंग आ रखी है। इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसके वर्ल्ड कप्स होते हैं। प्री वर्ल्ड कप हमारे बीर बिलिंग जो हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली एक प्री वर्ल्ड कप हुआ, तो ऐसी स्पर्धाएं होती है और हमारे तीर में ये सब करने की पोटेंशियल, सब क्षमता है। और हम चाहते हैं कि दुनिया से क्राउड आए, यहाँ पर बड़े मात्रा में उनके लोग लेके आए और अपना यहाँ काम करें, पैराग्लाइडिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए